ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर ऑफ प्रेजेंट इनकम्बेंट डायरेक्टर, अभी ट्रिम्स का ऊपर में विश्वास खत्म हो गया, जनता का, पेशेंट का और सारा अरुणाचली का जो विश्वास खत्म हो गया। और उसका कारण से आज हमारा डॉक्टर और पेशेंट का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हमारा नर्स का साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हमारा पब्लिक और ट्रिम्स का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। इसलिए लाउड एंड क्लियर मैं सरकार से अपील करता हूं, डिमांड करता हूं कि डॉक्टर जिनी सर को आप पोस्ट से हटाइए। XYZ इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, चाहे जो भी हो, आप इंडिया का कहीं भी कोना से डायरेक्टर लेके आइए, ट्रिम्स का बदनाम को कम कीजिए। अदरवाइज ये डिमांड को अगर फुलफिल नहीं करता, आफ्टर 7 डेज हम लोग ने फैसला किया 24 ऑफ दिस मंथ हम लोग कैपिटल में 12 आवर्स का बंद कॉल करेगा। और मैं आपका माध्यम से मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट, रीजनल यूनिट का और हमारा समाज का युवाओं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, प्लीज 24 के लिए आप लोग तैयार रहिए। सरकार अगर 7 डेज में इस डॉक्टर जिनी को अपना पद से नहीं हटाता है तो आप लोग हमारा साथ जोड़िए बोल के मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू ऑल द मीडिया fraternity who come here to coverage our press briefing. So with the team All Nyisi Youth Association Anya, with heavy heart हम लोग ने आज एक समाज को और हमारा अरुणाचल का जनता को, अरुणाचल का सरकार को और अथॉरिटीज ऑफ ट्रिम्स को एक हम लोग बताने के लिए, कुछ खबर बताने के लिए आया है। सबसे पहले मैं आज ट्रिम्स में जो डॉक्टर के साथ कुछ हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ टीम आया कंडेम करते हैं कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा मारपीट नहीं होना चाहिए। मैं उसको कंडेम करते हुए मैं अपना बात रखना चाहूँगा। दिस प्रेस ब्रीफिंग इज रिगार्डिंग 7 days ultimatum on 1 point memorandum, that is we are seeking resignation or termination of director TRIMS। उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा। मैं लेटर को सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, सब्जेक्ट 7 days ultimatum on 1 point memorandum। Respected sir, with utmost seriousness and deep concern, All Nyisi Youth Association Anya would like to remind your esteemed office of our representation submitted on 7th May 2025, wherein we placed before you a 1 point memorandum as follows. Immediate termination of Dr. Moji Jini, Director of TRIMS, for illegally holding office. It is a matter of great concern that Dr. Moji Jini is who officially retired from government service on 31st August 2021. After serving as Director, Tomoriba Institute of Health and Medical Sciences, has continued to occupy the said post through successive extensions. This continuation is direct violation of the government's own policy as notified in Office Memorandum on number AR /68/2010/3365, dated 8 August 2015, issued in pursuance of the Cabinet decision of 2nd July 2015, which categorically states, hence no such proposal for extension of service beyond the retirement age shall be entertained in the interest of the public service. We had enclosed a copy of the above office memorandum along with our earlier representation, which is hereby reiterated for your immediate consideration. Sir, despite this clear mandate, Dr. Jini has been allowed to continue, resulting in widespread dissatisfaction, mismanagement, and a series of incidents reported from TRIMS on a daily basis.
public confidence in the premier health institution of our state is at all-time low, and the dignity and reputation of TRIMS stand severely compromised under the present leadership. In light of the above, ANYA hereby serves a final ultimatum of 7 days to your government to remove Dr. Jini from the post of Director TRIMS. Failure to take immediate corrective action within the stipulated period will compel us to launch a statewide democratic movement against your government. We trust that your esteemed office will treat this matter with the urgency and seriousness it deserves, in the greater interest of the public and the institutional integrity. With highest regards, हमारा टीम मैं और मेरा जनरल सेक्रेटरी ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो इधर पीछे में बैठा हुआ है, ये मेमोरेंडम हम लोग आज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने सबमिट कर रहा है. डॉक्टर जिनी हु इज होल्डिंग पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ट्रिम्स, विद इन 1 वीक में उसको पोस्ट से रिमूव करना है, उसको निकालना है. क्यों बोलने से पिछले जो मई 7 तारीख को हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था कि डॉक्टर जिनी से हम लोग कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटेंशन नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का ऑफिस मेमोरेंडम और कैबिनेट डिसीजन ये बोलता है कि आफ्टर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होने का बाद, रिटायर एज का बाद किसी को एक्सटेंशन नहीं करना है बोला है. क्लियर कट 8 अगस्त 2015 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है, तो उसका कॉपी भी हम लोग इनक्लोज करके दिया गया है. तो ये आपका सिस्टम का खिलाफ है, अपना डिसीजन का खिलाफ है. इसलिए हम लोग ने पिछले बार मई 7 तारीख को 2025 को हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, पॉइंट भी हम लोग ऐड किया था कि प्रेजेंट जो इनकम्बेंट जो डायरेक्टर को पोस्ट से हटाइए, क्योंकि ये आपका डिसीजन का खिलाफ है, आपका सिस्टम का खिलाफ है बोल के हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया. आप मई महीना से आप गिन के देखिए, अभी 5 महीना चल रहा है, अभी तक ये रिप्लाई दिया था कि ऑनरेबल सीएम सर से रीसफल के लिए ऑन द प्रोसेस बोला है. तो 5 महीना तक क्यों प्रोसेस जो लैप्स हुआ है, उसका कारण से आज हमारा ट्रिम्स में रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा ट्रिम्स में अभी क्या चल रहा है. मैंने पिछले जो मेरा प्रेस बाइट में मैंने यही कहा था कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर ऑफ प्रेजेंट इनकम्बेंट डायरेक्टर, अभी एक छोटे बच्चा का जो देहांत हुआ और रिसेंटली सी सेक्शन जो सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपल वाला ऑपरेशन होता है, तो उसका भी डेथ हो गया. उसका कारण से अभी ट्रिम्स हल्ला हो रहा है. अभी ट्रिम्स का ऊपर में विश्वास खत्म हो गया, जनता का, पेशेंट का और सारा अरुणाचली का जो विश्वास खत्म हो गया. और उसका कारण से आज हमारा डॉक्टर और पेशेंट का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हमारा नर्स का साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हमारा पब्लिक और ट्रिम्स का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है. इसलिए लाउड एंड क्लियर मैं सरकार से अपील करता हूं, डिमांड करता हूं कि डॉक्टर जिनी सर को आप पोस्ट से हटाइए. XYZ इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, चाहे जो भी हो, आप इंडिया का कहीं भी कोना से डायरेक्टर लेके आइए. ट्रिम्स का बदनाम को कम कीजिए. अदरवाइज ये डिमांड को अगर फुलफिल नहीं करता, आफ्टर 7 डेज हम लोग ने फैसला किया 24 ऑफ दिस मंथ हम लोग कैपिटल में 12 आवर्स का बंद कॉल करेगा. ये हमारा तरफ से मैसेज है. अच्छा देखिए, बहुत हम लोग इशू जो सीरियस होते जा रहा है, सब लोग कंसर्न है जो ट्रिम्स में जो हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है. डॉक्टर लोगों का ऊपर में भी एलिगेशंस आया उस दिन, और आज डॉक्टर लोगों का ऊपर में हमला हुआ है. बहुत गंभीर विषय है, सोचने के लिए समाज को भी समझना पड़ेगा दोनों साइड से. लेकिन आप लोग ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन बंद कॉल ही सॉल्यूशन है क्या?
इसलिए बनकोल जो हमारा अरुणाचल में देखिए मनोज सर और सारा मीडिया बंधु आप लोग जानते हैं, अरुणाचल में जो भी इश्यूज को बनकोल से सोल्यूशन लाता है, ये कौन किया है? सरकार ने किया। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। रिसेंटली हमारा गालो ब्रदर्स लोग ने, गालो का स्टूडेंट यूनियन आलो में बनकोल किया। जब आलो में गालो स्टूडेंट यूनियन जो जब उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया था, सरकार उसको क्यों नहीं सुना था? आफ्टर बनकोल उसका डिमांड क्यों सक्सेस हुआ है? इसलिए बनकोल जो एक ये बन गया हमारा, ये इसमें कल्चर बन गया कि हम बनकोल से ही सोल्यूशन कर सकता है। ये सरकार का एक कल्चर हमारा पब्लिक लोग को बना दिया। इसलिए मैं ये बोलता है कि हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया, ये इलीगल में एक्सटेंशन करते गया, और अभी सुनने को आ रहा है कि आफ्टर अब सबमिटेड आवर रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ने उसको इलीगल है बोल के रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसका बात भी एक्सटेंशन किया गया। ये तो गलत बात है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बनकोल जो सोल्यूशन इसलिए है कि सरकार जो जब तक बनकोल नहीं करेगा हमारा आवाज़ नहीं सुनता है। रोलिया साहब देखिए, ठीक है, वो इशू को आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे, लोग भी आप इशू का साथ में है, लेकिन जो घटना हुआ था लास्ट वीक में ट्रिम्स में, उसका ऊपर में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाया। ये एक सब्जेक्ट हो गया, और आज डॉक्टर लोगों का ऊपर में हमला हुआ। ये दोनों इशू एक ही ट्रिम से ही जुड़ा हुआ है। इसका ऊपर में आप लोगों का क्या राय है और लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं आपका सवाल को मैं यही जवाब देना चाहता हूँ। सरकार तो एश्योरेंस तो देता ही है, और सरकार का काम तो एश्योरेंस देने का बाद तारीख पे तारीख रख देता है, और उसका सोल्यूशन आता नहीं है। मैं आपका जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 2019 में PRC इशू हुआ है, उसमें हमारा 3 लोग का जान गया है, और उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिव अभी प्रेजेंट आनिया एग्जीक्यूटिव मेंबर एक है, हमारा असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी, उसको भी गोली लग गया था। गोली लगने का बाद उसको सरकार का तरफ से ये एश्योरेंस दिया था कि कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में उसको जॉब देगा बोला है। बेचारा वो आज तक दौड़ रहा है, कहाँ है उसका एश्योरेंस? आज तक क्यों नहीं दिया? उसको एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी तो दे सकता था ना, आज तक क्यों नहीं दिया? इसीलिए सरकार का जो एश्योरेंस जो जब तक टेबल पे लेके नहीं रखेगा, वो एश्योरेंस को हम लोग कभी भी विश्वास नहीं करते। अच्छा, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने ट्रिम्स का जो चेयरमैन है और जो भी मोदी जी को आप हटाने की बात कर रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनका हटाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? एक नंबर। दूसरा बात, अभी करंट सिचुएशन है, अन्य इसका ऊपर मुद्दे में क्यों नहीं बात नहीं कर रहा है? आप तो एक मुद्दे में सिर्फ बात कर रहे कि मोदी जी को हटाना है, तो इसमें क्या कहेंगे? जो अभी प्रेजेंट मुद्दा है उनमें आप काम क्यों नहीं कर रहे? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने 5 महीना पहले मेमोरेंडम सबमिट किया था, अभी का समय सिचुएशन इतना प्रॉब्लम चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं, तो अभी आप लोग क्यों आकर के हल्ला कर रहे हैं? आप लोग पहले कहाँ था 5 महीना पहले? मैं सबसे पहले विक्टर सर का जवाब मैं देना चाहूँगा। आनिया सिर्फ उसका टर्मिनेशन का सिर्फ ध्यान नहीं दे रहा है। आनिया इसलिए उस दिन भी हम लोग ने बात रखा था कि जो विक्टिम फैमिली है, जो लोग जिसका परिवार का सदस्य खोया है, उसको सरकार जो कॉम्पेंसेट करना है और उसका डिमांड को फुलफिल करना है, ये हमारा डिमांड था। दूसरा जो ये डॉक्टर जीनी को हटाने से सॉल्यूशन ऐसा बोल के नहीं है। डॉक्टर जीनी एज सब लोग बोलता है, हमारा सरकार भी बोलता है या सब बोलता है कि डॉक्टर जीनी ओनली क्वालिफाइड पर्सन हु रन द ट्रिम्स, ये बोलता है। हम लोग भी मानता है एक्सपीरियंस हिसाब से वो क्वालिफाइड है, लेकिन हमारा सारा इंडिया में एक क्वालिफाई वाला नहीं है क्या? इसलिए हम लोग उसको बोलता है। और वो सिर्फ नहीं है, ये जो आपका जो 8 अगस्त 2015 का ऑफिस मेमोरेंडम को आप वायलेट कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। और आपका रवि सर का जो सवाल है, हम लोग पहले क्यों बोल के छोड़ दिया, बीच में गैपिंग हुआ था। सरकार ने हमको एश्योरेंस दिया, विद इन शॉर्ट पीरियड में हम लोग को रिसपल करके आपको रिजल्ट बता देगा बोला। हम लोग ने अपडेट किया, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर को भी अपडेट करते हैं, ऑनरेबल CM को, और CMO में हम लोग अपडेट करता है।
उसका पायल प्रोसेस चल रहा है में अभी इतना हादसा हो रहा है। तो ये अगर पहले हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन देते समय अगर उसको ऑनरेबली उसको एग्जिट करने देने से अभी ये हादसा भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था बोलने से, हमारा एज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, एज फॉर आवर नॉलेज, ये ट्रिम्स में ऐसा है कि अभी जो कैसा कॉलेज को रन करना है, मेडिकल कॉलेज को कैसा रन करना है, ये बात नहीं चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और जो पब्लिक सरकार का जो बजट है, जैसे साल में 100 करोड़ बजट होता है, 60% ट्रिम्स को दिया जाता है, कैसा करके वो पैसा को यूज करना है, ये सिर्फ डिस्कस करता है। अरे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता तो आप अपना डॉक्टर को आप ब्रीफिंग कीजिए बिहेवियर के बारे में, पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन का बीच में, इस नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट का बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये सिस्टम को आप ब्रीफिंग करके अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता, ये हादसा नहीं होता। सिर्फ आज आदमी का जान सिर्फ नहीं जाता, उसमें ऑक्सीजन कमी होने का कारण से आदमी का जान नुकसान हो जाता है। और आपका स्ट्रक्चर देखिए, उस दिन आप लोग ने भी कवरेज किया था, एसी का सामने में छत लीक होके पानी घुस रहा है, और आप केबिन में बोलता है केबिन का फैसिलिटीज नहीं है, आईसीयू है, आईसीयू का फैसिलिटीज नहीं है। और आप जाके देखिए, जहाँ सीटी स्कैन करने का जगह में इवन बाथरूम टॉयलेट तक भी नहीं है, बनाया है दूर दूर में बनाया है, पेशेंट कैसा करके जाएगा, ये फैसिलिटीज होना चाहिए। इसलिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होगा, आदमी का जान भी बचना चाहिए, और सिस्टम भी अच्छा होना पड़ेगा, पब्लिक रिलेशन का साथ भी ठीक होना पड़ेगा। क्यों हमारा लोग रिफरल लेता है, इधर से बाहर जाना चाहता है, आपस में भरोसा नहीं करता है, भरोसा का लायक क्यों नहीं किया। हमारा जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज को चलाता है, मेडिकल कॉलेज को, हॉस्पिटल को चलाता है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, जिनी सर है। तो एवरी स्मॉल टू स्मॉल प्रॉब्लम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी हेल्ड बाय डायरेक्टर ओनली। इसीलिए वो उसका अभी राइट पर्सन राइट टाइम है जो अभी रिजाइन देने का, छोड़ने का। क्योंकि अभी इतना हादसा होने का बाद भी अभी डॉक्टर का साथ में, मैंने पहले भी बोला, डॉक्टर का साथ रिलेशन खराब एडमिनिस्ट्रेटर का कारण से भी होता है, तो डॉक्टर लोग बदनाम हो जाता है। इसीलिए वो अभी राइट टाइम में रिजाइनेशन देना है। उसके बाद जो नया इनकम्बेंसी आता है उसका साथ में कैसा सिस्टम को बदलना है, सरकार का साथ बैठ के बदलना चाहिए। लोग ट्रिम्स में थोड़ा हमारा स्टेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटी को भी जब हम लोग बात करता है तो ट्रिम्स नॉन मेडिकल कॉलेज है अरुणाचल प्रदेश का। अब तो हमारा अपना बच्चा लोग भी वहाँ पास होकर शुरू कर दिया है, लेकिन काफ़ी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली देखने से नहीं होता है, फैसिलिटीज़ हम लोगों ने देखा है कि रिपोर्ट लेने का लाइन में काफ़ी लंबा होता है, ब्लड टेस्ट करने जाता है बहुत लंबा लाइन है, और मेडिसिन का भी बात करता है तो काफ़ी दवा लोगों को डॉक्टर लोग बाहर लिख देता है, फिर बाहर भी नहीं मिलता है, फिर दोबारा डॉक्टर को जब मिलने आता है तो समय नहीं होता है। बहुत तकलीफ है। ये सब तकलीफ को लगता है कि सॉल्यूशन नहीं देने का वजह से फ्रस्ट्रेशन दोनों का बीच में हो रहा है क्या, ना दूसरा और कोई कारण हो सकता है। यहाँ में हम ऐड करना चाहेगा कि अन्य सिस्टम है और SOP है, अभी काम करने का तरीका है ट्रिम्स का, क्योंकि सवालों के घेरे में है, आज भी सवालों के घेरे में है, और इसका जो कन्फ्यूजन है अभी दिखने को मिल रहा है पेशेंट और डॉक्टर का बीच में। क्या इस सिस्टम और SOPs और इसका ऊपर अन्य काम करेगा? ये जो मैं आप लोगों को क्लियर कर मैं बताना चाहूँगा, ये जो सिस्टम अरुणाचल का लोन मेडिकल कॉलेज है, वी वेलकम दैट। हमारा अरुणाचल में लोन मेडिकल कॉलेज है। जब ट्रिम्स जो जनरल हॉस्पिटल नाहरलगुन था, इतना इशू नहीं था। अभी मेडिकल कॉलेज आने का बाद इशू क्यों है, ये तो हम लोग का सवाल है। और जैसे आपने बोला फैसिलिटीज़ जो जैसे अवेल करना था, एक्सेस करना था, वो नहीं किया होगा। देखिए इसमें जैसे कि उस दिन मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उसका अपना कोई किसी को लेके गया, CT स्कैन करने के लिए 1 महीना का टाइम दिया। 1 महीना में अगर बीमार ज़्यादा होकर मर जाने से आप 1 महीना में टेस्ट करके क्या करेगा। और एक बात आप लोग का जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, कल ही बताया
कि जिसका सी सेक्शन करने के लिए जो नीचे पोर्शन का जो भी मदर को नीचे पोर्शन को उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है या उसको पैरालाइज करके ऑपरेशन सी सेक्शन करता है, तो वो औरत जो जस्ट ऐसा लेट के सुना है, बीच में एक डॉक्टर बोला है हम कट के देखेगा। हाँ, दैट मीन्स जो आप उधर में प्रैक्टिकल वाला लोग बच्चा लोग को भी करा रहा होगा, उसका कारण से हमारा प्रोसीडियर लैप्सेस भी होता होगा। तो ये तो बहुत रिस्क बात है ना। आप कट के देखिएगा मीन्स किसी का जान को आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये तो गलत बात है। तो इसीलिए हम लोग का यही क्लियर कट मैसेज है कि किसी को एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप मुर्दा लाश होता है, कहीं से भी लेके कीजिए, लेकिन जो जिंदा है किसी का माँ को मत कीजिए, किसी का बहन को मत कीजिए, किसी का जो बीवी को मत कीजिए, किसी का दीदी को मत कीजिए। करना है तो आप जो बहुत लावारिस लाश से मिलता है उसको आप ट्रिम्स इतना बड़ा एक हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, लेके रखिए ना एक्सपेरिमेंट के लिए। यही हमारा सवाल है। लास्ट देखिए फिर अब वही बोलता है कि बंद कॉल ही सॉल्यूशन है क्या? बंद कॉल इसलिए सॉल्यूशन है जब तक हमारा पब्लिक नहीं जागने से, पब्लिक एकता नहीं होने से सरकार नहीं सुनता है। मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं, स्पेशली हमारा कम्युनिटी, स्पेशली फॉर द नीसी कम्युनिटी, जब भी हम लोग एक मांग रखता है तो बंद कॉल करना पड़ेगा, अल्टीमेटम सर्व करना पड़ेगा, तभी हमारा मांग को पूरा करता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मांगो या कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्टिंग के लिए, जैसे एग्जांपल यूपिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने के लिए हमारा अंशु ने बंद कॉल किया, NIT जोते को उधर बनाना है बोल के हमारा आन्या ने डिमांड करके रखा। ऐसा करके बहुत सा डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने के लिए, कई पंजर करने के लिए अंशु और आन्या जॉइंटली वो मेमोरेंडम दिया, डिमांड किया। हर अभी नीसी एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बंद कॉल या डिमांड करने का कारण से हुआ है। इसलिए हम हमेशा बोलता है, मैं सरकार को भी बोलता है और सरकार में जो सरकार का पद में जो लोग रहता है और हमारा ऑफिसर लोग को भी या हमारा जो टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट जितना लोग है उन लोगों को मैं हमेशा जब भी मिलता है, हम क्यों डिमांड करके बंद कॉल करके हमारा डिमांड को पूरा करता है? ऐसा करने मत दो। हमारा जान माल का नुकसान होता है, हमारा इकोनॉमिक नुकसान होता है, हमारा जो अननेसेसरी टाइम लॉस होता है। प्लीज़ सरकार, जब हम आपका पास पहुंचता है तो हमारा ग्रीवेंसेस को आप एड्रेस करने से ठीक है, नहीं तो जब जलने का बात एड्रेस करके फायदा नहीं है। इसलिए बंद कॉल को हमारा अभी समाज में एक कल्चर जैसे हो गया, बंद कॉल से ही सही सोल्यूशन हो सकता है। इसलिए आफ्टर फेलिंग ऑफ दिस 7 days अल्टीमेटम अगर नहीं होता तो सच में हम लोग 24 को बंद कॉल करने जा रहे हैं। और मैं आपका माध्यम से मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट, रीजनल यूनिट का और हमारा समाज का युवाओं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, प्लीज़ 24 के लिए आप लोग तैयार रहिए। सरकार अगर 7 days में इस डॉक्टर जिनी को अपना पद से नहीं हटाता है तो आप लोग हमारा साथ जोड़िए बोल के मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है।